Hello everyone, greeting for the day and welcome back. For some guys, for some students like Aditi, and maybe some more peoples will come. So I hope all are you well, and I hope you are enjoying the EPLAN classes. And actually, I will introduce myself first. So myself, Irshad Ali, and basically I'm from Dehradun, Uttarakhand, and from last 10 year I'm working. So from last 10 year I'm working with industries and as a trainer also. So actually this is the like an online introduction part we have. The main class we will start after 8 o'clock. Okay. So actually according to my experience, so like a 5 year I was worked in industries as a automation engineer and as a designing engineer also. So if somebody have some doubts related to the automations, related to the designing, so anytime actually you can ask. Okay. So miss, you just feel free to ask the doubts, to ask the questions, and to ask the queries. If like any points I will explain to you and you are not getting that point, so you can ask that point multiple times. Definitely I will explain. But like if I'm explaining something and if you are not getting any point, if you are not getting anything, and like after 5 days, after 10 days, you will say that, okay, sir, I didn't understand that. So that all things can disturb our schedule. Okay, so that's why what exactly I'm saying. So means like I just attend the classes each and every day, because only 2 weeks we have for this electrical CAD, and all the things actually related to the e-plan, whatever things actually you are learning and whatever things already you had learned, so related to the e-plan, that electrical CAD also we have to be learned. And in this electrical CAD, that all things actually we will cover up. And like if we are talking about the electrical CAD software and we are talking about the AutoCAD software, so I think each and everyone have the different software, each and everyone have the different versions. So don't worry about it, because I'm working with electrical CAD 2016. So if we have the advanced version like a 2021, like if somebody has a 2020, so the problems will not come definitely. And like whatever things I will explain, so that all things easily you will understand and easily you can cover up. Okay. So we will wait for the 3 minutes, and after that 3 minutes, we will start the session, because some other guys also will come, and then we will start our all the things. So there are some peoples जो लोग फिर से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं. मैं अदिति and Abhishek, you also have the class today, and Sanika Pawar. Okay, so Aditi, will you tell me what's going on? Aditi Suttar. Yes, sir. क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो अभी? Sir, Are you searching or I did you am get a the job? fresher electrical engineer student. I have completed a diploma also Okay. in electrical engineering. Currently Okay. searching for a job. Okay. 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 That's good. That's good. नहीं सर, So e-plan वो complete हो चुका है आपका? चालू हो, उसके बाद वो खुला है. अच्छा अच्छा अच्छा. Okay. 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 ठीक है ठीक है. और अभिषेक, will you attend the class today? Yes, sir. I will join it today. लास्ट टाइम नहीं थे आप. एक्चुअली हमारे कुछ तो शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा था सब लोगों का. कुछ तरफ मेरी तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे. एक्चुअली नेटवर्क्स वगैरह नहीं थे. तो लास्ट वाला जो क्लास था वो अटेंड किया आपने? वीडियो देखा लास्ट वाला? नहीं सर, लास्ट वाला नहीं. लास्ट वाला क्लास भी नहीं हुआ सर लास्ट टाइम. नहीं नहीं, एक्चुअली अभी फ्राइडे को क्लास था ना हम लोगों का. फ्राइडे क्लास हुआ था. ओके सर, मैंने उसका रिकॉर्डिंग वगैरह अभी देखा नहीं. हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना तो मेरी बाला से चीजें बात हुई क्लियर थी, हो उन्होंने जाएंगी. कहा कि नहीं हो सकता. नहीं, बाला नहीं था. बाला नहीं था, केवल स्वर्ण ओनली स्वर्ण वाज देयर. केवल स्वर्ण क्लास में थी, बाकी और कोई नहीं था. Even is calling just behind. Just now I'm getting call Okay, from okay. him, Bala. ओके ओके ओके. तो बेसिक ऑटो कैड आप लोगों का सबका हो चुका है ना? Yes, sir. ओके.
या दैट्स गुड। तो अगर बेसिक ऑटो कैड हो चुका है आप लोगों का, सो नाउ एक्चुअली टुडे वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल कैड। सो इलेक्ट्रिकल कैड बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ई प्लान की तरह ही है। एक्चुअली वी कैन से दैट कि ई प्लान हमारा एडवांस वर्जन है, एंड द इलेक्ट्रिकल कैड व्हेन वी विल स्टार्ट एंड वी विल स्टडी अबाउट इट, so this is a little bit older version actually we have. Means whatever possibilities we have in E-plan, that possibilities are not available in electrical CAD. Okay, so there are some options we have, and there are some theories we have related to the electrical CAD and related to the AutoCAD. So that theory part first of all we will cover up, and after that we will start the main things, whatever things actually we have to be learned today. Okay, so I'm just going to share my screen with everyone. So my screen is visible for everyone. Yes, sir, it is visible. Yeah, that's good. Okay, so actually we are going to start the electrical CAD. उससे पहले हमने basic AutoCAD already complete किया है, and already we know very well about the basic AutoCAD. First of all, I will ask the questions from everyone. So everybody is comfortable with Hindi and English, or yeah, only English we have to use? Yes, everyone. Please tell me if anybody have doubts. Sorry, if anybody have any problem with Hindi, so please tell me right now. Otherwise, I will mix up the Hindi and English in class. Yeah, only in English we have to we have to start the class, and actually with English only we have to end the class. So it is completely depend on you. You have to decide it. Yes, everyone. Sir, you can continue with English Hindi, any. Yeah, that's good. ठीक है, अगर किसी को कुछ लगता है, if somebody will face the doubts and problems, so actually you have to suggest, and then we will take the class with that same format. Okay, so if we are talking, yeah. Okay, so if we are talking about the electrical CAD, so electrical CAD is the advanced version of the AutoCAD. So in a starting time, the AutoCAD was came in industries. AutoCAD की अगर हम बात करते हैं, तो AutoCAD is specially designed for the mechanical. Okay, and when we will talk about the AutoCAD is the 2D and 3D designing software. And even in this AutoCAD, there is the one part actually we have, that part is specially designed for the electrical CAD. Okay, and even if we will talk about the electrical CAD software, so that electrical CAD software also is the combination of mechanical and electrical. So especially if we will talk about the electrical part, in electrical part there are some features we have, there are some importance we have. So that features and importance here you can see right now. Features of advanced electrical. This is called like advanced electrical. If we are using only AutoCAD, because in some companies, in some industries, people are using only AutoCAD, and by using that AutoCAD they are designing like a components, they are going to design the blocks and that all things, and with the help of that AutoCAD only they are developing the circuits, they are developing the panels. Okay, so that electrical CAD is the advanced version of that. And what are the features of that electrical CAD? That features we will understand. That features will come respect to basic AutoCAD, respect to normal AutoCAD, respect to the mechanical AutoCAD. तो मैकेनिकल कैड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैड के कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास. दैट एडवांटेजेस हियर वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस द इलेक्ट्रिकल कैड भी है, जो हमारा सिलेबस रहेगा. एक्चुअली कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, आप लोगों के पास भी सिलेबस होगा, आई नो दैट, but that complete syllabus we will cover up according to that point. So पहला रहेगा features of advanced electrical, introductions to electrical, graphical, user interface, types of project. तो इलेक्ट्रिकल कैड में एक्चुअली हम लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे. टाइप्स ऑफ वायर, wiring of PLC, symbol builder, circuit builder, panel introductions, reports. So that all things actually we have to be learn here.
और इसी में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लॉट ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली वी हैव विद ईच एंड एवरी पॉइंट, जो पॉइंट हम लोगों को कवर करने हैं. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज व्हाट, दिस इज द फीचर्स ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिकल्स. तो अगर हम एडवांस इलेक्ट्रिकल लर्न करने जा रहे हैं आफ्टर द AutoCAD, आफ्टर द मैकेनिकल AutoCAD, so which features and which advanced conditions, which advanced functions will come, that things here we can see. First of all, strictly electrical schematics were drawn by hand. Electrical projects design required a lot of time and lead to numerous design errors. तो अगर हम लोग by the way हाथ से डिजाइन कर रहे हैं, like if we are using the AutoCAD में अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूँ, so what will happen, so here so many errors will come. Okay, and it will take too much time because each and everything we have to be designed by ourselves. The push buttons also we have to design by ourselves, the motor also we have to be designed by ourselves. So kya hoga, it will take the too much time. But when we will use the electrical CAD, in electrical CAD so many things are available, and that so many components are related to electrical are available, and that components and that possibilities will make you very fast, and with the help of that all things the results also will come very easily. तो इसमें और भी options हैं. If we are talking about the electrical CAD, so in the 90s electrical drawing software packages appeared. These packages allowed to draw electrical schematics with lines and symbols. Electrical projects become more professional and time saving were achieved about 20% in particular with copy paste of existing blocks. ओके तो यहाँ पे क्या है कि 80s में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कैड मतलब आया था. तो एक्चुअली इन दैट केस, इन दैट टाइम जो भी चीजें थी लाइक कंपोनेंट्स को कॉल करना, कंपोनेंट्स को यूज करना, तो उसमें आपका जो टाइम था लाइक टाइम सेविंग ज्यादा था. ओके, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो भी अपडेट हुआ था हमारा. उसके बाद आगे की अगर हम बात कर दें, देन इन 90s इलेक्ट्रिकल कैड पैकेज अपडेट. तो पहले जो 80s था, 80s में केवल AutoCAD था. AutoCAD में जो भी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स है वो खुद से बनाने पड़ रहे थे. और लाइक अगर कुछ बॉक्स आप लोगों ने बनाए होंगे जैसे ब्लॉक, W ब्लॉक, तो ब्लॉक और W ब्लॉक बना के उनको कहीं सेव रख रहे थे हम लोग. उसके बाद उनको कॉपी पेस्ट करके, तो क्या हो रहा था उसमें हमारा 20% टाइम बच रहा था. बट दैट सेकंड नंबर इज स्पेशली रिलेटेड टू द मैकेनिकल ओनली. Okay, उसमें इलेक्ट्रिकल्स के छोटे मोटे like some small symbols actually we can see in mechanical also, but especially if we are talking about electrical, तो 90s में इलेक्ट्रिकल CAD इंडस्ट्रीज में आया है. उससे पहले AutoCAD, तो AutoCAD जो था वो 1980 में आया था, एंड आफ्टर दैट 1990 में जो आया है वो इलेक्ट्रिकल CAD आया है एक्चुअली. तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कैड के पैकेज की बात करता हूँ, इन इलेक्ट्रिकल कैड पैकेज देयर आर द लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज भी है. द पॉसिबिलिटीज हियर यू कैन सी. दिस पैकेज हेल्प अचीव अप टू 60% टाइम सेविंग विद फंक्शनैलिटीज सच एज. तो इसमें पहले हमारा 20% टाइम बच रहा था, अभी 60% टाइम बचेगा. कैसे बचेगा? पहला कंडीशन क्या है? कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली नंबरिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप कंपोनेंट लेने वाले हो, जो भी सिंबल्स लेने वाले हो, उन सिंबल्स को, उन कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली एक नंबर डिफाइन हो जाएगा, एक टैग डिफाइन हो जाएगा. सो हियर योर टाइम विल सेव. सेकंड थिंग इज व्हाट, इजियर कंपोनेंट सिलेक्शंस विद स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स एंड सिंबल कैटलॉग्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जस्ट लाइक अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हम लोगों ने ई प्लान में क्या किया था, किसी भी सिंबल को पार्ट बनाया था ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम फंक्शंस है. वी कैन टेक एनी सिंबल और उस सिंबल्स को हमें पार्ट बनाने के लिए क्या करना है, उसके साथ में वी हैव टू ऐड द कैटलॉग्स. व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द कैटलॉग्स. तो कैटलॉग्स जब आप लोग ऐड करोगे उसके साथ में, सो देन इट विल बिकम लाइक ए पार्ट. आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली टर्मिनल्स, केबल्स एंड पैनल, ओके, प्लान्स विल जनरेट. तो ये जो चीजें हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी हमारी, जस्ट लाइक ए केबल्स, लाइक ए पैनल्स, ओके, लाइक ए टर्मिनल, दैट ऑल थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली. ओके, ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड केबल्स लिस्ट जनरेशंस. तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट्स वगैरह भी जनरेट होंगी हमारी. ओके, डेटा एक्सचेंज विद अदर पैकेज, मैकेनिकल कैड, ERP, PDM as professional software, PLC programming, labeling, panels, manufacturing, cable cutting, documents, achieving cost calculation, that lot of things. तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास डेटा एक्सचेंज होता है.
ताकि अगर हम लोगों को ई प्लान हम लोग यूज करें तो ई प्लान के साथ में भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केड का जो डेटा है वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है. एंड देर आर सम अनदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो वी हैव वेयर वी कैन एक्सचेंज द डेटा. अगर मैंने कोई ड्राइंग वगैरह बनाई है इलेक्ट्रिकल कैड में तो उसको दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. And even the PLC programming, the labeling, panel manufacturing, that lot of facilities are available inside of that. After that, there are some another options also. We have automatic trimming and tagging. तो यहाँ पे क्या है कि जो वायर्स वगैरह है, वायर्स ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाते हैं. आप लोगों ने ये प्लान में भी देखा है, तो इलेक्ट्रिकल कैड में भी वो फैसिलिटीज है हमारे पास. बट दैट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन ऑटो कैड. ऑटो कैड में अगर हम कोई लाइन वगैरह यूज कर रहे हैं और उस लाइन पे कोई कंपोनेंट माउंट करते हैं हम लोग, सो द कंपोनेंट विल नॉट बी ट्रिम ऑटोमेटिकली, द वायर विल नॉट बी ट्रिम ऑटोमेटिकली. बट इन इलेक्ट्रिकल कैड दैट ऑल थिंग्स विल डन ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक एरर चेकिंग, अगर कुछ एरर्स वगैरह है तो एरर्स भी हमें पता चल जाती है कि एरर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. सो दैट एरर चेकिंग ऑप्शंस आल्सो आर अवेलेबल हियर. ये एरर चेकिंग वाले जो ऑप्शंस है एक्चुअली हमारे पास ई प्लान में भी नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल कैड में. ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर. मीन्स लाइक वी कैन डू द ऑडिट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑडिट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर आर द एरर्स वी हैव, where component selections are not perfect and where we are not given the tagging, where we are not giving catalogs, so that all things actually we can check here. Cross reference and linkings. Cross reference already you know very well. वो जो पेरेंट्स चाइल्ड कॉम्बिनेशंस रहता है हमारा, वो पेरेंट्स चाइल्ड कॉम्बिनेशंस को हम क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं एक्चुअली. So that options also are available here. Automatic report generation. Here also we can generate the reports automatically. Okay, here we can draw some symbols and we can design some symbols. उन symbols को हम add कर सकते हैं अपने libraries में. PLC इनपुट आउटपुट कनेक्शंस, PLC वगैरह यूज कर सकते हैं, उसके इनपुट आउटपुट कनेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं एंड यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट पॉसिबिलिटीज वी हैव. ओके, एडवांस इलेक्ट्रिकल डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर आप एडवांस इलेक्ट्रिकल की बात करते हो या ई प्लान की बात करते हो तो, या एक्चुअली अगर आप रिलेटेड टू द डिजाइनिंग किसी भी टॉपिक की बात करते हो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड एनी डिजाइनिंग टास्क, so each and every designing task is divided into 3 parts. That 3 parts should be what? The first thing is the schematic, and we know very well schematic is the combination of control circuit and power circuit. The next thing is the panel, and the third thing is the reports. तो कोई भी आप पैनल बनाओगे तो हर एक पैनल में ये 3 चीजें हम लोगों को कंपलसरी यूज करनी है. एंड इवन इफ यू आर अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, even if you have to design any circuit for the machines, so then compulsory that things you have to use. Schematics use करने, schematics में control circuit रहेंगे, power circuit रहेंगे. Schematic डिजाइन करने के बाद हमारे पास पैनल्स रहते हैं, और पैनल डिजाइन करने के बाद हमारे पास क्या रहते हैं, रिपोर्ट्स रहते हैं. रिपोर्ट्स में द मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज द बिल ऑफ मटेरियल. सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली भी है. यही 3 चीजों को हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है. एंड इन्हीं 3 चीजों पे हम लोगों को फोकस करना है. आफ्टर दैट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट अगर कुछ लोगों ने मेरा ई प्लान का क्लास अटेंड किया होगा तो उन लोगों को पता होंगी ये चीजें कि प्रोजेक्ट्स के जो टाइप्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से रहते हैं. इवन इलेक्ट्रिकल, इवन इन ई प्लान ऑल्सो. तो वो जो प्रोजेक्ट के टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू रीजन रहते हैं. मतलब जैसे अगर कोई बंदा यूएसए का है तो यूएसए में अलग स्टैंडर्ड्स चलेंगे, जापान में अलग स्टैंडर्ड्स चलेंगे. सो दैट स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हियर वी कैन सी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल कैड. तो पहली बात तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहले पार्ट्स हमारे क्या है, इंपीरियल. तो इंपीरियल जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, दैट इंपीरियल स्टैंडर्ड्स विल कम विद फीट एंड इंचेस. तो इंपीरियल स्टैंडर्ड्स में जो डायमेंशंस रहते हो किसमें आते हैं, हमारी फीट एंड इंचेस. और इसमें क्या रहता है, जो सिंबल्स की क्वांटिटीज रहती है थोड़ी लेस रहती है अगर इंपीरियल की बात करेंगे. तो इस इंपीरियल के अंदर जो लाइब्रेरीज रहे, वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी है, विच आर द लाइब्रेरीज वी हैव इनसाइड ऑफ दैट इंपीरियल. सो दैट लाइब्रेरी इज द एनएफपीए. एनएफपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन. सो दिस इज द वन स्टैंडर्ड विच इज यूएसए स्टैंडर्ड. यूएसए में फॉलो होता है मोस्टली, एंड वी कैन से द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. So NFP is the part of Imperial. Second one is the JIS, Japanese Industrial Standard.
So this standard is mostly using for the Japan. अगर जापानीज इंडस्ट्रीज के लिए, जापानीज कंपनीज के लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, so definitely we will use that JIS standard. JIC जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल, तो जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल जो है, दिस इज द एक्चुअली पार्ट ऑफ यूएसए, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ यूएसए एक्चुअली. तो यूएसए स्टैंडर्ड है जो मोस्टली यूएसए के लिए यूज होते हैं. सो एक्चुअली दिस आर द इंपीरियल लाइब्रेरीज, दिस इज द इंपीरियल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. इंपीरियल में हमारे पास 3 लाइब्रेरीज है, NFPA, JIS और JIC. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स है हमारे, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड जो है हमारे MM में चलते हैं. सिंबल्स आर मोर, यहाँ पे सिंबल्स भी क्या रहेंगे हमारे पास, जो मैट्रिक्स लाइब्रेरीज है उसमें सिंबल्स की जो क्वांटिटीज रहेगी, दैट क्वांटिटी आल्सो शुड बी वेरी हाई. सॉरी. एंड हियर we have the standard IEEE. We know very well what is the full form of that. Institute of Electrical and Electronics Engineer. So this standard also is the international standard we can say, and this is the Europe standard. तो यूरोप में फॉलो होते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी फॉलो होता है. ओके, IEC स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन. दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्चुअली, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है. एंड मोस्ट ऑफ केसेस में इन इंडिया ऑल्सो वी आर यूजिंग दैट 2 स्टैंडर्ड्स, IEEE एंड IEC. तो इंडिया के लिए ये 2 स्टैंडर्ड सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूजफुल है. ओके, GB इज द गॉर्जिया बेरजून. It is especially used for China. Okay, GOST. GOST is the Geo. So the same S standard. S standard. Standard means it is not like a. It is especially like in Russian language. जो भी like pronunciation होगा इसका, like if we have to speak that same words and that same sentence, so we have to speak with the Russian language. Then properly you can speak. Okay. तो रशियन के लिए जो स्टैंडर्ड चलता है, दिस इज द GOST स्टैंडर्ड. तो इफ एनीबडी हैव एनी डाउट अप टू हियर, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं. ओके, नोबडी हैव एनी डाउट. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रिकल. तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि इलेक्ट्रिकल में हम लोगों को प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, लाइब्रेरी सिलेक्शन कैसे करना है, एंड दैट ऑल थिंग्स हाउ वी हैव टू बी यूटिलाइज. तो हम करते क्या है कि जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल की बात कर दें, we will start the electrical CAD. So अगर हम लोग बेसिक ऑटो कैड यूज कर रहे हैं तो बेसिक ऑटो कैड में इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन नहीं आएगा. बट इफ definitely you have the electrical CAD, so this option also will become, that option should be just like AutoCAD electrical. So I have the 2016 version, and maybe that version can be different for like some people are using 2021 also, 2020 also. Okay, और नया वर्जन जब भी कोई आता है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, बट डेफिनेटली वट एवर थिंग्स आई विल एक्सप्लेन या वट एवर थिंग्स वी विल लर्न हियर, तो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा कि नहीं यार ये तो हमारा पूरा अलग हो गया, वो अलग हो गया. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल नॉट कम. ओके, तो ये एक तरीके से ई प्लान का 2.7 और 2.9 वर्जन की तरह हो गए. तो जो 2022 है ई प्लान का वर्जन, उसकी तरह नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब अलग नहीं होगा कुछ भी. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लाइक ए सिमिलर. सो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट द AutoCAD इलेक्ट्रिकल राइट नाउ. तो AutoCAD इलेक्ट्रिकल जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये पहला टास्क है हम लोगों का. प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट में हम लोगों को लाइब्रेरीज वगैरह कैसे सेट करनी है, लाइब्रेरीज वगैरह कैसे यूटिलाइज करनी है, उसमें हमें नए ड्राइंग्स कैसे ऐड करना, दैट थिंग्स एक्चुअली वी हैव टू बी अंडरस्टैंड. So even you also can start your electrical CAD, and now you can see how exactly we have to do that all things. अगर कुछ डाउट्स लगेंगे तो बीच बीच में भी आप लोगों को मीन्स यू कैन आस्क द डाउट्स, तो क्लियर करके चलना साथ साथ. ओके, तो बेसिक AutoCAD जो आप लोगों ने किया है उसमें लेयर मैनेजमेंट वगैरह किया है क्या? लेयर मैनेजमेंट, ब्लॉक, W ब्लॉक, ये चीजें आप लोगों की हुई है क्या? नहीं सर. हाँ, Sir, we have लेयर नहीं हुआ आप information लोगों का. about that. Practically, we're not done yet. Okay, layers and block and W block. Ah, yes, sir. It is done.
Okay, and layer management also. No, sir. Layer management, I know the information, but I'm not done yet. Okay, okay, okay. Don't worry, don't worry. We will do it. Okay, don't worry. Okay, there are some projects actually we have. इनको मैं close कर देता हूँ एक बार. I will close this all the projects from there. Like this. Okay, so I don't have any project almost here right now. So how actually we have to start the project and what exactly we have to do? If if you don't have that options and if you don't have this project manager tree, so from where it will come, because we know very well already हम लोगों ने जो home वाले options है वो home वाले options हम लोगों ने use किए already. We are completed. एक drawing open कर लेता हूँ. Okay, so already we had done that all things related to the home में हम लोगों ने lines वगैरह सब चीजें कैसे create किए वो सब आप लोगों को पता होगी almost. Actually ये चीजें किस लिए हम लोग कर रहे हैं, why that actually that all things we have to do. ये जो basic AutoCAD हम लोगों ने किया है वो किस लिए किया है, because when we will draw some symbols and when some symbols we have to add in our libraries, तो symbol builders के लिए symbols बनाने के लिए इन सब commands का use almost होता ही होता है. तो इसलिए हम लोगों को बेसिक AutoCAD की जरूरत पड़ती है. That's the reason. Okay, now there are the options we have: project, schematic, panel and reports. तो ये चार चीजें हैं जो हम लोगों को अपने इलेक्ट्रिकल कैड में कवर करके चलनी है: प्रोजेक्ट्स, schematics, पैनल एंड रिपोर्ट्स. ओके, यही चार टॉपिक्स रहेंगे हमारे एंड दैट 4 टॉपिक्स एक्चुअली वी हैव टू बी लर्न. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से, बिकॉज जो होम वाला ऑप्शन है वो आपका कवर अप हो चुका है बेसिक AutoCAD में. सो व्हेन वी विल गो टू द प्रोजेक्ट, सो इन प्रोजेक्ट देयर आर सम ऑप्शंस एक्चुअली वी हैव. तो इन ऑप्शंस में आप क्या कीजिए, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द मैनेजर ऑप्शंस. एक्चुअली दैट मैनेजर ऑप्शंस विल कम. अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, I'm just going to be removed from there. I don't have any options here right now. I don't have any project tree right now. तो अगर project tree को लेके आना है मुझे, so what exactly we have to do? Project में जाना है and we have to click on the project manager. So when you will click on the project manager, so here you can see some options will come. तो इन options में हमारे पास कुछ और भी options है. That options actually you can see: open, new, okay, new drawing, refresh. Okay, after that project wide update, retag. So that's some options actually we have. तो सारे के सारे options हम लोगों को देखने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, first of all what exactly we have to do, we have to start the new project from there. यहाँ से क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है. तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, when you will start the new project, here first question is there, you have to define your project name. So your project name you have to be defined here like a practice 1. So practice 1 is the project name. Next thing is what, now it is asking where you want to save this project. ये प्रोजेक्ट आपको सेव कहाँ पे करना है. तो ये तो एक उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या किया, एक लोकेशन ले लिया. बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप सेव करके रख सकते हो. सपोज मुझे डेस्कटॉप पे रखना तो मैं डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ. ओके, दिस प्रोजेक्ट आई कैन पुट ऑन द डेस्कटॉप. साथ ही साथ क्या कह रहा हूँ, क्रिएट फोल्डर विद प्रोजेक्ट नेम. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जस्ट लाइक हमारा ऑटोमेटिकली हियर आल्सो द प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अनटिक कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा कहाँ पे क्रिएट होगा, अपना डेस्कटॉप पे क्रिएट होगा. किस नाम से क्रिएट होगा, जो भी हमने नाम दिया हुआ है प्रैक्टिस 1. तो प्रैक्टिस 1 के नाम से यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है. द थर्ड ऑप्शन इज देयर, द थर्ड ऑप्शन इज शोइंग कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, विच स्टैंडर्ड एक्चुअली यू आर यूजिंग. सो हियर यू कैन सी देयर इट इज शोइंग द IEC स्टैंडर्ड एंड हियर यू कैन सी द लाइब्रेरी आल्सो IEC स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. तो ये जो लाइब्रेरीज वगैरह है हमारे पास, इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो चेंज कैसे करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज. तो ब्राउज में जाके यहाँ से थोड़ा बैक करो उसको. तो बैक जाने के बाद आपको पता चलेगा यू विल फेस सम ऑप्शंस. तो कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास. तो ऑप्शंस में आपके पास कौन कौन से, देखो GB, दिस इज द GB स्टैंडर्ड. सो GB इज द चाइनीज स्टैंडर्ड. IEC and IEC, these are the
IC standard, international standard actually. IEEE standard is there. JIS, Japanese standard is there. Okay, NFPA, this is the National Fire Protection Standard. So these are the some standards we have. Point to point, this is also one standard actually. तो यहाँ पे कुछ standards हैं हमारे पास according to our requirement. हमें कौन से कंट्रीज के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, कौन से रीजन के लिए प्रोजेक्ट बनाना है. तो एक्चुअली जो बंदा आप लोगों को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेगा, ही विल टेल यू कि हम लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाना है इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है. तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड चेंज करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के सिंबल्स थोड़े चेंज होंगे, सिंबल्स के टाइप्स चेंज होंगे, तो वहां पे कुछ चेंजेस मिल जाते हैं हम लोगों को. तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी आर इन इंडिया एंड वी आर फ्रॉम इंडिया राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द आईसी स्टैंडर्ड. तो अभी हम क्या करेंगे, आईसी स्टैंडर्ड यूज करने वाले. तो आईसी स्टैंडर्ड को अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ पहले वाले को, ओके, सो इन दैट केस दिस इज द लाइब्रेरी वी है. तो इस लाइब्रेरी को हम लोग को सिलेक्ट करना है. अगर और दूसरे ऑप्शंस आप यूज करते हो IEEE में भी देखो यहाँ पे लाइब्रेरी है हमारे पास. Okay, NFP, if we are using in NFP also we have the library. So with each and every standard the libraries are available for the components. तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, IEC standard मैंने यूज किया, IEC standard का लाइब्रेरी सेलेक्ट किया and now I'm just going to be open this. तो इसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया. तो ओके करने के बाद ही हमारा प्रोजेक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया. बट राइट नाउ हियर सम मोर इंफॉर्मेशंस यू कैन ऐड. आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस ऐड करनी है और ज्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा. इफ यू आर क्लिक ऑन ओके, सो योर प्रोजेक्ट विल क्रिएटेड राइट नाउ, और उसमें और प्रॉपर्टीज ऐड करने, देन वी हैव टू गो विद ओके प्रॉपर्टीज. तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ओके करता हूँ यहाँ से, आई विल मेक इट ओके. तो जैसे ही मैंने ओके किया, हियर यू कैन सी वन प्रोजेक्ट इज केम. दिस इज द वन प्रोजेक्ट एक्चुअली वी हैव. तो अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, इफ आई हैव द प्रोजेक्ट राइट नाउ हियर, तो इस प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं. आई हैव टू राइट क्लिक हियर. राइट क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है. तो प्रॉपर्टीज में हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिमेटिक जो लाइब्रेरीज है, दिस आर द सिमेटिक लाइब्रेरीज वी है. ये वाली हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है. पैनल के जो फुटप्रिंट्स वगैरह आएंगे उसकी लाइब्रेरी ये है, और पैनल्स के लिए स्पेशली जो पैनल वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए भी आईसी स्टैंडर्ड. तो ये स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम रहने चाहिए हमारे. तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही आईसी स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, तो दैट आईसी स्टैंडर्ड विल डिफाइन फॉर योर पैनल आल्सो, फॉर योर सिमेटिक्स आल्सो. तो ये तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है. दिस ऑल थिंग्स ऑलरेडी वी आर डिसाइडेड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इन कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स में यहाँ पे क्या बता रहे हो कि जो भी आपके टैग नेम आएंगे, टैग नेम आपके क्या आएंगे, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, आपका एक नेम डिफाइन होगा, और नेम डिफाइन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, उसका नंबर आएगा. दैट शुड बी नेम ऑफ द टैग, एंड आफ्टर दैट दैट शुड बी लाइक ए नंबर ऑफ द टैग. अगर एक ही मोटर को मैं 10 मतलब लाइक ए मोटर को 10 जगह पे अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, सो दैट शुड बी लाइक ए मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, इस तरीके से उसके टैग ऑटोमेटिकली जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये स्टैंडर्ड यूज होगा. वायर्स के जो नंबर्स है, वायर्स के नंबर एक्चुअली न्यूमेरिक फॉर्म में रहेंगे. दैट शुड बी लाइक ए न्यूमेरिक फॉर्म. हियर यू कैन सी दीस आर द न्यूमेरिक फॉर्म्स वी हैव. उसके बाद क्रॉस रेफरेंसेस. इन क्रॉस रेफरेंसेस आल्सो, दैट क्रॉस रेफरेंसेस विल बी जस्ट लाइक ए, अगर ड्राइंग्स के बीच में जैसे हम क्रॉस रेफरेंस करेंगे, दो कंपोनेंट्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे, तो दैट शुड बी जस्ट लाइक ए फॉर्मेट. नंबर फॉर्मेट रहेगा, और साथ ही साथ उसका नेम वगैरह भी डिफाइन होगा साथ साथ. उसके बाद स्टाइल्स. तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स वगैरह, ये स्टाइल्स वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे. बाद में कैसे देखेंगे कि लाइक अगर हम लोगों को सोर्स एरोज, डेस्टिनेशन एरोज, ओके, तो उस तरीके से अगर हम लोगों को यूज करना है, पीएलसी के इनपुट, पीएलसी के आउटपुट्स पे अगर हमें कनेक्शंस वगैरह यूज करने, सो दीज आर द टाइप्स एक्चुअली वी हैव. तो उनको बाद में देखने वाले हम लोग. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जस्ट लाइक अगर हम लोग को जंपर बनाना है, इफ वी हैव टू यूज द जंपर, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जंपर्स वी हैव. आप इस तरीके से गैप भी डिफाइन कर सकते हो. इवन यू कैन यूज दिस लूप ऑप्शन ऑल्सो, एंड इवन यू कैन यूज दैट थर्ड सॉलिड ऑप्शन ऑल्सो. तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो. तो मोस्ट ऑफ केसेस में लूप यूज होता है. आफ्टर दैट दिस इज द एंगल ऑप्शंस वी हैव. यहाँ पे हमारे पास अनदर ऑप्शंस आल्सो वी हैव हियर. दिस इज द वन ऑप्शन
जो एक्चुअली क्या करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं। नोड में आपको डिफाइन करना है कि आप डॉट भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, एंगल 1 भी यूज कर सकते हो, एंड इवन एंगल 2 भी यूज कर सकते हो। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एंगल 1 और एंगल 2 एक्चुअली डिफाइन करते हैं आपके कनेक्शंस आपको कहां से करने, वेर आर मिस फ्रॉम वेर यू आर मेकिंग द कनेक्शंस। एंगल्स के नॉलेज हम लोगों को होने चाहिए। हम लोगों ने ई प्लान में भी पढ़े हैं ये एंगल्स, एंड वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू दैट एंगल्स एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड हमारा वायर कहां से कनेक्ट हुआ है, कौन से डिवाइस से कनेक्ट हुआ है। ओके तो हम यहाँ पे फिलहाल क्या यूज करता हूँ मैं, आई विल यूज द डॉट ऑप्शन राइट नाउ। तो ये इतना ऑप्शन यूज करके ड्राइंग फॉर्मेट में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन जो हाइट विड्थ वगैरह है, जो मल्टीपल वायर स्पेसिंग वगैरह है, तो और जो हमारा स्केलिंग वगैरह है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सिमेटिक हम लोग जो भी बनाएंगे या वट एवर ड्रॉइंग्स वी विल टेक राइट नाउ, तो ड्रॉइंग्स में हमारे ड्रॉइंग्स की जो स्केलिंग होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, फुल साइज। वी डोंट हैव टू यूज द इंच राइट नाउ बिकॉज IEC स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग, इन IEC स्टैंडर्ड वी हैव टू यूज फुल साइज। एंड यहाँ पे जो फीचर स्केल मल्टीप्लायर है उसको हमें क्या करना है, 1 रखना है। दिस वन शुड बी 1। उसके बाद वायर्स के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा, दैट वायर स्पेसिंग शुड बी 10 mm हम लोग को रखना है। दिस इज द 10 mm actually we have. And after that, if we are talking about this table, like this table, ये जो कॉलम्स है इनके बीच का जो साइज वगैरह डिफाइन हुआ है वो हम लोग पैनल में देखेंगे। जब हम लोग पैनल वगैरह डिजाइन करेंगे तो पैनल्स में ये साइज को भी हम क्या करने वाले, उसको चेंज करने वाले हैं, उसको देखने वाले हम लोग। ओके यहाँ पे आप लोगों को एक्स जोन यूज करना है, यू हैव टू यूज द एक्स जोन। एक्स जोन मतलब क्या होगा, केवल आपके कॉलम में डिफाइन होगा, रो में डिफाइन नहीं होगा। इफ यू विल यूज द एक्स वाई ग्रिड फ्रॉम देयर, तो आपकी ड्राइंग रो एंड कॉलम में डिवाइड हो जाती है। एंड इफ वी विल यूज द एक्स जोन, तो एक्स जोन में मतलब आपकी ड्राइंग केवल कॉलम में डिवाइड हो रही है। तो फ्रॉम द बोथ एनी ऑप्शन यू कैन यूज, एक्स वाई ग्रिड भी आप यूज कर सकते हैं एंड इवन एक्स जोन भी यूज कर सकते हैं आप। ओके तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू से ओके फ्रॉम देयर। जो जो मुझे प्रॉपर्टीज चेंज करनी थी, जो जो मुझे चाहिए थी मेरे प्रोजेक्ट के लिए, दैट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड एंड नाउ आई कैन से ओके फ्रॉम देयर। तो ये प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज हुए अभी सेट। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट के साथ में ड्रॉइंग्स ऐड करना है, सेम टू सेम लाइक ई प्लान। जिस तरीके से हम लोगों ने ई प्लान में किया था, ई प्लान में सबसे पहला जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ई प्लान में क्या होता है, प्रोजेक्ट के हम लोगों को क्या करना है, लाइब्रेरीज वगैरह सेलेक्ट करने, टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट करने। उतना करने के बाद फिर नेक्स्ट विंडो आता था जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज सेट करते थे। सो हियर आल्सो दैट सेम ऑप्शंस आर अवेलेबल। और उतना होने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, ड्रॉइंग्स ऐड करते थे। एंड नाउ हियर आल्सो दैट सेम थिंग्स वी हैव टू डू। अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू ड्रॉइंग। तो यहाँ पे एक नया ड्राइंग ऐड करना है। नए ड्राइंग्स में हमें ड्राइंग किस लिए बनाना है, सो यू कैन डिफाइन द नेम सिमेटिक। तो जो ड्राइंग का नाम है वो क्या है, सिमेटिक है। अब होगा क्या, यहाँ पे हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये जो ड्राइंग्स है हमारी, दैट ड्राइंग इज टेकिंग टेम्पलेट। एक्चुअली ड्राइंग जब भी हम लोग कोई यूज करते हैं तो ड्राइंग का एक टेम्पलेट रहता है, ड्राइंग का एक साइज रहता है, ओके, ड्राइंग का एक बॉर्डर रहता है, ड्राइंग का एक प्लॉट फ्रेम रहता है। तो वो प्लॉट फ्रेम, वो टेम्पलेट, ड्राइंग का बॉर्डर, तो उस चीज के बारे में और आगे हम नेक्स्ट डे कभी डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं टेम्पलेट पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, इफ आई विल क्लिक ऑन द ब्राउज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर आर सम ऑप्शंस एक्चुअली वी हैव रिलेटेड टू द टेम्पलेट। ACAD इलेक्ट्रिकल IEC ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, ये वाला स्टैंडर्ड है, एनीवन यू कैन यूज। और अगर आप स्पेशली IEC स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, या these are some IEC standard, A0 size, A1 size, A2 size, A3 size। तो स्पेशल जो IEC स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लाइब्रेरीज के, तो ये वाले भी आप यूज कर सकते हो। A3 साइज के लिए यूज करना है या A4 साइज के लिए वगैरह वगैरह यूज करना है, या आइदर अगर आपको एक डिफॉल्ट ऑप्शन यूज करना है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑल्सो, ACAD इलेक्ट्रिकल IEC। तो इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देता हूं मैं। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह अगर आपको ऐड करने हैं आपके ड्राइंग्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शंस आप ऐड कर सकते हो, लगे प्रैक्टिस। ओके उसके बाद आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के कुछ कोड वगैरह डिफाइन कर सकते हो आप, यू कैन डिफाइन द कोड्स। ये कोड्स हमारे यूज होते हैं एक्चुअली, अगर हमारे पास मल्टीपल ड्राइंग्स है, उन मल्टीपल ड्राइंग्स में जब हम पेरेंट्स चाइल्ड कॉम्बिनेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो कोड एक्चुअली उस टाइम पे हमारे यूज होते हैं। तो कोड आप डिफाइन कर सकते हो, इधर अगर आपको नहीं डिफाइन करना है तो वो भी चलेगा हमारा। एंड वी नो वेरी वेल, ये जो सिमेटिक है हमारा, इसका जो शीट नंबर है वो पहला है, और जो ड्राइंग नंबर है वो भी हमारा फर्स्ट है। द ड्राइंग नंबर ऑल्सो इज फर्स्ट एंड द शीट नंबर ऑल्सो इज फर्स्ट वी हैव राइट नाउ। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू से, यहाँ पे भी हमारे पास ड्राइंग के प्रॉपर्टीज आएंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी सेट किए हुए एंड डायरेक्टली यू विल से ओके फ्रॉम देयर, जैसे आप ओके करोगे देन इट विल आस्क डू यू वांट टू अप्लाई द प्रोजेक्ट डिफॉल्ट वैल्यूज टू द ड्राइंग सेटिंग। यस, हमने जो भी सेटिंग्स प्रोजेक्ट के साथ में सेट किए वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी हमारे पास अप्लाई होने वाली है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से यस कर देता हूँ। So here you can see the one drawing is came with this project, इस प्रोजेक्ट के साथ में एक ड्राइंग आ गई सिमेटिक नाम से। Now one more drawing if we have to add with this, so one more drawing also you can add, new drawing, and now you can say circuit. Here also we can write the description practice, and this is the sheet number 2 and this is the drawing number 2, and again we can say okay. So it will ask the questions each and every time, so you have to say okay from there. Yes. So now you can see that 2 drawings are came. Okay, तो ये हमारे पास एक ड्राइंग आ गई where we have to draw the circuit, where we have to draw the things जो भी हम लोग को चाहिए। तो ये वाली जो स्टैंडर्ड्स है हमारी, this is the default standard with IEC। तो इसका जो साइज वगैरह, that size also you can see from this corner to this corner। This is the 410। तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है इसका 410। A3 साइज में ऑलमोस्ट इतने रहते हैं हमारा 410 और 420। और इसका जो हाइट है हमारा, दैट हाइट ऑल्सो यू कैन सी, मीन्स हाइट जो रहती है A3 साइज की वो कितनी रहती है 297, लेकिन यहाँ पे कितना है 280 है इसका। तो दिस आर द सम डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स वी हैव, अगर आईसी में आपको यूज करना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, खुद के टेम्पलेट्स भी बना के रख सकते हो, खुद के टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो, एंड इन फ्यूचर दैट थिंग्स एक्चुअली वी विल सी एंड दैट थिंग्स वी विल लर्न। तो वो चीजें भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा एक ड्राइंग जहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजों को ड्रॉ करना है। तो आज का हम लोगों का जो टास्क है, आज का टास्क क्या है, अभी पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ कि प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, प्रोजेक्ट के साथ में ड्राइंग्स वगैरह कैसे ऐड करनी है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर ये ड्राइंग है मेरे पास एंड इनसाइड ऑफ दैट ड्राइंग इफ आई हैव टू ड्रॉ सम सिमेटिक्स, इफ आई हैव टू ऐड सम कंपोनेंट्स, तो ये तो प्रोजेक्ट का ऑप्शन था। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट ऑप्शंस वी हैव टू गो विद सिमेटिक। तो सिमेटिक में जाना है हम लोगों को, और सिमेटिक में हम लोगों को ये सब चीजों को यूटिलाइज करना है एक्चुअली। तो इन सब चीजों का यूज क्या क्या है, इन सब चीजों को यूटिलाइज कैसे करना है हम लोगों को, दैट थिंग्स एक्चुअली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो वायर का ऑप्शन है, दिस इज द वायर ऑप्शन। तो अगर मैं नॉर्मली एक वायर सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई विल सेलेक्ट द वायर एंड आई विल स्टार्ट टू ड्रॉ, सो द वायर यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली लाइक दिस, like this। So this is the one closed loop of the wire we have here, you can see। अब इस लूप में अगर आपको कंपोनेंट्स वगैरह रखने हैं, so what exactly we have to do, we have to go in icon menu। in icon menu we have to use the first option icon menu, and when you will click here, and even साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इन सब की शॉर्टकट्स भी दे सकते हो आप। इलेक्ट्रिकल कैड के लिए अगर कोई भी कमांड, देखो ऑटो कैड के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, तो सर्कल के लिए C यूज कर सकते हैं, लाइन के लिए L यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेक्टेंगल के लिए REC यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इलेक्ट्रिकल कैड के लिए अगर आपको कमांड्स यूज करने हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैड के लिए हर एक कमांड में आपका AE ऐड होगा। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो AE कंपोनेंट, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्लिक ऑन वायर,
So in wire also, AE wire. AE का full form क्या है? AutoCAD electrical. So the AE will come. AE multibus. AE wire number. तो हर के साथ में AE ऐड होना ही होना है. तो आप यहाँ पे भी कमांड्स यूटिलाइज कर सकते हो, एंड थ्रू दैट कमांड बार यू कैन अप्लाई द कमांड्स एंड देन डायरेक्टली यू कैन टिक द वैल्यूज एंड यू कैन पुट द वैल्यू. तो पहला कंडीशन हमारा क्या है? वी हैव टू ऐड द कंपोनेंट्स. सो कंपोनेंट्स हाउ वी हैव टू ऐड? वी हैव टू गो विद आइकन मेनू. इन आइकन मेनू, दैट फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू चूज, एंड इन फर्स्ट ऑप्शंस दिस विंडो विल कम. दिस विंडो केयरफुली वी हैव टू बी यूज. तो इस विंडो में हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे स्केल सिमेटिक हमारा कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, जितना हमने डिफाइन किया था 1.0 डिफाइन किया था. तो यहाँ पे स्केल हमारा 1.0 ही है. स्केल ऑफ पैनल अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो स्केल ऑफ पैनल कभी बाद में यूज करेंगे, तो उसको देखेंगे हम लोग. ओके, तो दिस हियर यू कैन सी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, दैट स्टैंडर्ड इज द आईईसी स्टैंडर्ड. हम लोगों ने अभी जो सेलेक्ट किया वो कौन सा स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया भाई? आईईसी स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया. सो हियर आल्सो यू कैन सी द आईईसी स्टैंडर्ड, एंड दिस इज द आईईसी स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स वी हैव. तो देखो ये पुश बटन यहाँ पे भी है, एंड इवन हियर आल्सो दैट पुश बटन ऑप्शन इज अवेलेबल. Selector switch is available here also and here also. Breaker and disconnects are available here also, here also. Transformers are available. तो इस जगह पे या इस पॉइंट्स पे जो हमारे पास ऑप्शंस है, जो सिंबल्स है, वो किसके साथ में? लाइक उनके आइडेंटिफिकेशंस के साथ, या उनके लाइक सम ग्राफिकल इमेजेस के साथ में, लाइक PLC IOs, टर्मिनल कनेक्टर्स, मोटर कंट्रोल्स, टाइमर्स. तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, इवन फ्रॉम देयर आल्सो वी कैन यूज. तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? हम लोग को एक सर्किट बनाना है, जैसे छोटा सा सर्किट बनाएंगे हम लोग. सो वी विल गो इन मिसलेनियस स्विचेस. या सॉरी, वी हैव टू टेक द पावर सप्लाई फर्स्ट. तो पावर सप्लाई लेने के लिए हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू गो इन मिसलेनियस ऑप्शंस. तो मिसलेनियस ऑप्शंस में यहाँ पे हमारे पास छोटे मोटे पावर सप्लाई आप लोगों को मिल जाएंगे. लाइक पावर सोर्सेज यू कैन सी हियर, रेक्टिफायर्स आर अवेलेबल हियर, एंड द बैटरी आल्सो इज अवेलेबल हियर. तो जैसे मैं यहाँ से इस बैटरी को यूज करूंगा, सो दिस बैटरी आई विल टेक फ्रॉम देयर, एंड व्हेन आई विल पुट ऑन दिस वायर, तो इस वायर पे जैसे ही मैं पुट करूंगा, सो व्हाट विल हैपन हियर? कंपोनेंट टैग, यहाँ पे कंपोनेंट का जो टैग है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है. उसको डिस्क्राइब करना है, उसको नाम देना है, तो आप उसको नाम वगैरह दे सकते हो, लाइक बैटरी. ओके, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? नाउ यू कैन सी दैट यू कैन डिफाइन द पिन नंबर आल्सो. तो पिन नंबर में यू कैन सी दैट. तो ये 24 वोल्ट का एक बैटरी हमारा क्या हो गया? हमने पुट किया है अपने वायर्स के साथ में. नाउ वी हैव टू गो इन आइकन मेनूज अगेन. सेम थिंग्स वी हैव टू बी यूटिलाइज, एंड नाउ वी कैन यूज द पुश बटन्स. अगर मुझे पुश बटन्स यूज करने, सो आई कैन यूज द पुश बटन. लॉट ऑफ पुश बटन्स आर अवेलेबल हियर. So I will take the first one right now. So here I can add. जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, so we can say this is the start button we have. Start button. Okay, इसके पिन नंबर्स आपको डिफाइन करने. So पिन नंबर you can define 1 or 2, and you can say okay from there. So the start button is came right now. उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ लैंप वगैरह रखना है, कुछ आउटपुट वगैरह रखना है, so easily you can add. So you can go to the icon menu, and in icon menu, yeah, you can see the pilot lights. So that lights options you can add from there. So like a standard lights, in a standard light, green, red, that all options are available. Any options you can choose and you can put. Green lamp. Number also 1 and 2.
So we can say okay from there. So this green lamp is came. Okay, so this is the circuit and already we had learned that यहाँ पे क्या होगा, हमारे जब कंपोनेंट हम किसी वायर के ऊपर रखेंगे ना, तो वायर जो होते हैं हमारे ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाते हैं. तो वायर क्या होंगे हमारे ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएंगे एंड जस्ट लाइक द कंपोनेंट्स विल माउंट ऑटोमेटिकली ऑन द वायर. तो ये कुछ एडवांटेजेस है अगर आप बेसिक ऑटोकैड यूज करते हो और बेसिक ऑटोकैड में कोई कंपोनेंट बना के पुट करोगे तो वहां पे चीजें ट्रिम नहीं होंगी ऑटोमेटिक, वो चीजें आपको खुद से ट्रिम करनी पड़ेगी. यू हैव टू ट्रिम द लाइंस एंड वायर्स बाय योरसेल्फ, दैट ऑल थिंग्स विल नॉट ट्रिम ऑटोमेटिकली. ओके, इज दैट क्लियर? तो ये चीजें हम लोग को यूज करनी है, वायर वगैरह ड्रॉ करके उसके साथ में छोटे मोटे कंपोनेंट्स वगैरह यूज करने. ऑलरेडी आप लोग ई प्लान कर रहे हो, तो ई प्लान्स में जो भी आप लोगों ने कंपोनेंट्स जो भी सर्किट्स वगैरह बनाए हैं वो चीजें बना के आपको क्या करना है, उन पे प्रैक्टिस करना है. सो दिस इज द आवर फर्स्ट डे. और फर्स्ट डे में हम लोग को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, लाइब्रेरी कैसे ऐड करनी है, प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज कैसे सेट करने हैं, एंड इवन हाउ वी हैव टू स्टार्ट द सिमेटिक. दैट ऑल थिंग्स एक्चुअली वी हैड लर्न इन टुडे सेशंस एंड इवन द थियरी पार्ट आल्सो के प्रोजेक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना. प्रोजेक्ट के टाइप्स में प्रोजेक्ट के लाइब्रेरीज कौन कौन से हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, बेसिक लाइक जो भी हम एडवांस इलेक्ट्रिकल यूज कर रहे हैं. तो अभी कुछ लोगों का आई नो दैट कुछ लोगों का क्लास है, तो अगर किसी को कुछ डाउट कुछ क्वेरीज है सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, अदरवाइज इफ यू वांट टू लेफ्ट द क्लास यू कैन लेफ्ट. ओके, लेकिन प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को, सभी को प्रैक्टिस करना है. अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आगे की चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज दैट ऑल थिंग्स विल बिकम लाइक यूजलेस फॉर अस अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. ओके, तो किसी को कुछ डाउट कुछ क्वेरीज हो सो यू कैन आस्क गाइज. हेलो सर. या रोहन? सर 3 क्वेश्चन हैं. यस. सर पहला जो आपने लाइब्रेरी दिखाया वो लाइब्रेरी हमको एक्सटर्नली डाउनलोड करके कहाँ पुट करना होता है या फिर वो जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट आपने जो दिखाया लाइब्रेरी आ जाते हैं? वो लाइब्रेरी एक्चुअली बाय डिफॉल्ट दैट लाइब्रेरीज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा. व्हेन यू विल इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, so in installing time it will ask the library options, so then you have to choose the libraries. So actually if you will select the all libraries, so the all the libraries will install in your software. But if directly you will say the next, so only IEC libraries will come in your project, in your software on. So that things actually in installation time we have to be select all the libraries, which libraries we have to be add, so that libraries only it will show here. So all the libraries packages are available with your softwares, but in installations you have to be defined. ओके. दूसरा एक क्वेश्चन था आपने जो, मेरा तो अभी प्लान नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने वो पिंस नंबर वगैरह दिखाए वो हमने नहीं डाले तो भी चलता है ना, मतलब ऐसा को मैंडेट नहीं रहेगा ना? यस ऑफ कोर्स. एक्चुअली वो क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है. अगर हम एक डिजाइन इंजीनियर है तो ये चीजें हम लोग को फॉलो करनी पड़ती है. पिन नंबर्स हम लोग को दिखाने पड़ते हैं. अभी तो मैं जैसे 1 और 2 डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन हम पुश बटन अगर यूज करेंगे तो पुश बटन पे हो सकता है पिन नंबर हमारे अलग हो. सो इट विल गुड अगर आप डिफाइन कर रहे हो, अदरवाइज अगर नहीं भी डिफाइन कर रहे हो देन इट विल वर्क डेफिनेटली. यस. थर्ड डाउट और था कि जो आपने अभी आज हमने सीखा कि कैसे प्रोजेक्ट करेंगे और फर्स्ट आपने एक ड्राइंग निकाल के दिया, लेकिन सर ऐसा थोड़ा एक समराइज सिलेबस रहेगा तो प्रैक्टिस के हिसाब से हम जा सकते हैं. चलो आज ये टॉपिक का आज मुझे प्रैक्टिस करना है, दूसरा करना है, ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे? ये ऑलरेडी मैंने जो स्टार्टिंग में मतलब हम लोगों ने मैंने सिलेबस ही बताया था. इलेक्ट्रिकल कैड का जो हमारा सिलेबस है वो ये है हमारा, फीचर्स ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल यूओई, ओके, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट तक हुआ और टाइप्स ऑफ वायर में भी हमने एक सिंगल वायर ड्रॉ किया है. तो इसमें और भी पॉइंट्स है एक्चुअली. या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. तो ये कुछ टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें. आप वो सब चीजें अगर लिखने बैठेंगे हम लोग दैट शुड बी लाइक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आने वाले टाइम में आप सब चीजें देखोगे. अब जैसे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट थे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज आ गए, प्रोजेक्ट के टाइप्स आ गए, प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स आ गए, है ना. प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स में उसके प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करने, हम लोग को नए ड्राइंग्स कैसे ऐड करने, वो सब चीजें इंक्लूडेड हो गई उसी में.
अच्छा, इन शॉर्ट तो बेसिक ये AutoCAD में मतलब ये थोड़ा सा था, तो जस्ट मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे मतलब समझ में आता है कि ये टॉपिक्स कवर हो गया, तो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, ऐसा। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे पास एक्चुअली जो मैंने दिखाए, और भी सिलेबस का जो है तो रोहित सर विल सेंड यू डेफिनेटली। ओके सर। पॉइंट वाइज भी रोहित सर सेंड कर देंगे। यस यस। चलिए, और किसी को कुछ डाउट्स? नो, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। ओके, फिर अभिषेक 9:30 पे मिलते हैं हम लोग। ओके ओके सर, ओके सर। तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्लोज द सेशन। ओके, बाय, थैंक गुड यू सर। नाइट टू ऑल। Okay, sir. Bye.